ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیف پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں ملکوں کے پرچم تھامے بچوں نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ ازبک صدر کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مارک حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی بہادر فوج سیکورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارک حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ بھارتی کٹ پتلیوں کا حال بھی بھارتی طیاروں جیسا ہی ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ کہا جب تک بھارت ناپاک سازشیں ترک نہیں کرتا خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسی سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو دی گئی شکست اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ عظیم قربانیوں کے نتیجے میں جلد کشمیر کی آزادی ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا 8 لاکھ بھارتی فوج کشمیریوں کی سوچ پر پہرا نہیں دے سکتی۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ دو کالب یکجان کشمیر اور پاکستان مظلوم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے اظہار یکجہتی کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ منگلا پل پر ہزاروں پاکستانیوں نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے محبت کا اظہار کیا۔ کوہالہ پل پر پرچم کشائی کی تقریب 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پولیس کے یادگار شہداء پر سلامی۔ مظفر آباد میں برہان مانی چوک سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ریلی۔ راولا کوٹ میں بھی ریلی کا اہتمام۔ پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ اسلام آباد، پشاور، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں یوم یکجہتی کشمیر پر ریلیاں۔ اسلام آباد میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک وفاقی وزراء کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام نے خطاب میں کہا مارکہ حق اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دلیرانہ فیصلوں نے مسئلہ کشمیر میں نئی روح پھونکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں خطاب کیا۔ کہا پاکستان کے عوام کشمیر کے معاملے پر یک زبان ہیں۔ پشاور میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں خطے کا پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل سے وابستہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا بھارتی مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ بھارت کا کشمیر پر قبضہ عالمی ضمیر کے لیے سنگین چیلنج ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ کہا کشمیری قیادت کی گرفتاریاں اور میڈیا پر پابندیاں قابل مذمت ہیں۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے پر مجبور کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارتی قبضے کے باوجود کشمیری عوام کی مزاحمت ان کے موقف کی سچائی کا ثبوت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو ان کی منزل اور آزادی سے نہیں روک سکتی۔ یوم یکجہتی کشمیر پر افواج پاکستان کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نیول چیف اور ایئر چیف کی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ کہا تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ عالمی برادری کشمیری عوام کی تکالیف کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ افواج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افواج پاکستان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 216 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्द कार्रवाइयों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 36 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 22 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन में कामयाबी पाकिस्तानी बिलखसूस बलोच अवाम के आज़म की अक्कास है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 की कामयाब तकमील पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से फितना हिंदुस्तान की अमन को सबूताज करने की कोशिश नाकाम हुई। बैरूनी पुश्त पनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं कर सकती। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, फितना अंगेज़ी की हर कोशिश का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मोहसिन नकवी बोले, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक होगा। We hope the Council will act swiftly to designate the BLA under the 1267 sanctions regime, acceding to the listing request that is currently under consideration. पाकिस्तान का कलअदम BLA पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमें फिर मुनज़्ज़म हुई हैं। कलअदम TTP और BLA बैरूनी सरपरस्ती से पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस है। कलअदम BLA की हालिया हमलों में बलूचिस्तान में 48 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। चीन और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग का वजारत दाखिला का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। चीनी सफ़ीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत की गई। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसदादे दहशतगर्दी में जदीद चीनी टेक्नोलॉजी मुआविन साबित होगी। शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने वर्ल्ड कप तनाज़े में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के खिलाफ एहतजाज में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने का फैसला किया, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, अफसोस वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत से ना खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान का है, हम उसके पाबंद हैं। वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ी टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। कोलंबो में कैप्टन्स का कार्निवल, तमाम कप्तानों ने एक दूसरे से मुसाफा किया। लाहौर में ईद से पहले ईद, बसंत का बुखार 104, हर गली मोहल्ले में पतंगों की बहार। रंगों भरे त्यौहार को मनाने के लिए लाहौरियों ने फुल तैयारी कर ली। म्यूजिक के तड़के के साथ खाबों की भी तैयारी, बुकिंग करा ली। ढोल वाले भी रंग जमाने को तैयार। कल से लाहौर में हर सू बो काटा होगा। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का कहना है, बसंत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अब तक 1 अरब रुपए की डोर और पतंग फरोख्त हो चुकी है। आलू की बम्पर क्रॉप किसान के लिए परेशानी नहीं, खुशहाली का पैगाम लाएगी। आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। काज़ाकिस्तान पहला कदम है। जल्द मज़ीद बैनुल अक़वामी ज़रई मंडियों तक रसाई हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं,
आलू की रिकॉर्ड पैदावार को कम कीमत पर फरोख्त होने नहीं दिया जाएगा। किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। किसानों को बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए वफाक के साथ अमली इक़दाम कर रहे हैं। अगर ईरान पर हमला ना करते तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं होता। अमरीकी सदर ट्रंप का NBC को इंटरव्यू, कहा ईरान को खबरदार कर चुके, अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई को फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान में मुजाहरों के दौरान हमने ईरानी अवाम का साथ दिया। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं ईरान में सदर की कोई हैसियत नहीं। ईरान अजीब मुल्क है, हम वहाँ हकीकी क़यादत से बात नहीं कर सकते। फैसले का इख्तियार सुप्रीम कमांडर के पास है। ये वाकई सिफारतकारी को बहुत मुश्किल बना देता है। सदर ट्रंप नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे। अमरीका और ईरान ने तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा स्टीव विटकॉफ ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना है ईरान हमारा करीबी पार्टनर है, सूरत हाल को देख रहे हैं। ईरान, अमरीका और इसराइल को मालूम है हम मसला हल करने में किरदार अदा कर सकते हैं। ईरान से यूरेनियम वापस लेने की तजवीज़ से रिकॉर्ड है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं ईरान से यूरेनियम वापस लेने का मामला काफ़ी अरसे से एजेंडे पर है। तेहरान को अब फैसला करना होगा उसे क्या करना है। ईरानी सुप्रीम कमांडर के मुशीर अली शमखानी रूसी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। शमखानी कहते हैं यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का जवाज़ नहीं बनता। ईरान अफजूदगी को 20% तक कम करने की सलाहियत रखता है, फिर इस मवाद को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। IAEA के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 400 किलोग्राम यूरेनियम है। कश्मीर में कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान है। मसला कश्मीर भारत अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गया और ख़ुद मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से इनकार कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कश्मीर और फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं होता। मुस्लिम हुक्मरान कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल कराएं। जमात इस्लामी पहले नजरियाती थी, अब नफ्सियाती हो गई है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कुछ नहीं करती, इन्हें सिर्फ कराची में सियासत करनी है। रहनुमा एमकम ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं बजट से पहले 28वीं तरमीम आएगी, 29वीं का भी इम्कान है। वफाक के पास इख्तियारात होने चाहिए। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब तलवार की धार पर चल रहे हैं। We all are day-to-day facing deep fake and AI-generated content which is harming society a lot. We need the measures to have a proper AI detection tools. Now people are making the false and fake news. People can match your voices. The government has to monitor the entire social media. AI से तैयार जाली मवाद मुआशरे को नुकसान पहुँचा रहा है। डीप फेक और AI मवाद हुकूमत और मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आवाज़ और वीडियोज़ की नकल साजी से गलत मालूमात आम हो रही हैं। जाली मवाद फैलाने वालों को नताइज का सामना करना होगा। झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब ज़रूरी है। मुझे फ़ख्र है कि मैं आज यहाँ इब्न सीना वार्ड, इब्न अल हैतम वार्ड और अल शिफा OPD क्लिनिक्स का इफ्तिताह किया है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स इन कराची। ये वो अस्पताल हैं जो बिल्कुल नॉन फॉर प्रॉफिट और इसके साथ साथ डोनर फंडिंग पे काम कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल में 2 नए वार्ड्स और OPD का इफ्तिताह कर दिया।
मुराद अली शाह ने अस्पताल का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबे देखे और इलाज की सहूलतों की तारीफ की। कराची का मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल मेमन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेमन अस्पताल कराची में निजी शोबे का बड़ा अस्पताल है जिसका मयार आलमी सतह के मुताबिक है। निजी शोबे ने सेहत के मैदान में भरपूर ताउन किया है। टेम्पर्ड शुदा गाड़ियाँ वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों को अलॉट करने का इंकशाफ। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 128 टेम्पर्ड गाड़ियाँ महकमा एक्साइज ने पकड़ी। कट एंड वेल्ड इंजन या चेचेस नंबर तब्दील करके चलने वाली गाड़ियाँ शामिल हैं। वजारत दाखिला को 15 टेम्पर्ड गाड़ियाँ अलॉट की गईं। 3 गाड़ियाँ नैब हेडक्वार्टर को फराहम की गईं। डायरेक्टर जनरल एविएशन एयर कमांडर आतिफ को भी कट एंड वेल्ड गाड़ी दी गई। 27 टेम्पर्ड और कट वेल्ड गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस चला रही है। ISPR ने यौम यकजहती कश्मीर पर वलवला अंगेज तराना जारी कर दिया। कश्मीरी आवाम से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत और यकजहती का भरपूर इज़हार। तराने में कश्मीरी आवाम की कुर्बानियों, अज़्म इस्तक़लाल और उनके जज्बा हुब्बुल वतनी को मौसर अंदाज में उजागर किया गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को वाशिंगटन में एहतजाज का सामना। अमरीकी महकमा ख़ारजा आमद पर सिख मुजाहिरीन ने खालिस्तान की हिमायत और मोदी कातिल के नारे लगाए। एहतजाज के वक्त अमरीकी महकमा ख़ारजा में नायाब मादनियात से मुताल्लिक़ इजलास जारी था। जयशंकर को सख्त सिक्योरिटी हिसार में बाहर निकाला गया। गुरपतवंत सिंह ने कहा, जयशंकर जहाँ भी जाएंगे मोदी सरकार के मज़ालिम का हिसाब देना होगा। जंग मंदी के बावजूद इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। इसराइली बमबारी में 2 नौमौलूद समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत का कहना है शहीद होने वालों में ख़वातीन, बच्चे और ड्यूटी पर मौजूद एक तिब्बी अहलकार भी शामिल है। शिमाली गजा के इलाके तिफ़ाह में एक इमारत पर काबिज़ फोर्सेज ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक ही खानदान के 11 अफराद जान से गए। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश करने वाले शख्स को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। रयान राउत ने 2024 के सदारती इंतखाबात से कबल ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश की थी। ज्यूरी ने गुज़श्ता बरस सितंबर में रयान राउत को 5 संगीन इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया था। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला के बानी एलॉन मस्क को फ्रांस में साइबर क्राइम यूनिट ने तलब कर लिया। एलॉन मस्क की कंपनी पर गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्जाम है। पेरिस में पुलिस का एक्स के दफातर पर छापा, मुकम्मल तलाशी ली। फ्रांसीसी साइबर क्राइम यूनिट ने एलॉन मस्क को 20 अप्रैल को तलब किया है। एक्स के खिलाफ ये केस जनवरी 2025 में शुरू हुआ था। एलॉन मस्क ने कार्रवाई को सियासी हमला करार दे दिया। नवा साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज 4 करोड़ 54 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। गर्मी हो या थकन, बार बार इनकार हो या मुश्किलात, हजारों पोलियो वर्कर्स बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली PSL की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स में शामिल हो गए। मोइन अली को 6 करोड़ 44 लाख रुपए में डायरेक्ट साइनिंग के तहत टीम का हिस्सा बनाया गया। किंग्स की 4 रिटेंशन का ऐलान पहले ही किया जा चुका। हसन अली को प्लैटिनम, अब्बास आफरीदी को डायमंड, खुशदिल शाह को गोल्ड और साद बेग को इमर्जिंग कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। न्यूजीलैंड के डेवोन को कॉनवे को भी PSL खेलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 करोड़ 30 लाख रुपए में डायरेक्ट साइन किया। और T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी करेंगे साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शुएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे तज्ज़ीह। कॉमेडियन आदि और मुस्तफ़ा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। प्रोग्राम कल से रोज़ाना रात 11:03 पर ARY न्यूज़ पर नशर होगा।